ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਕੌਬਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਨੀ ਬੀਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲਕ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਡੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਦੀਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਕੌਬਨ ਵੀ, ਡੈਨੀ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਕ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਲਕ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਕੌਬਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। Dr. Neil, what you want to say about the Selkirk College? Selkirk College is the oldest publicly funded college in British Columbia. We're celebrating our 50th anniversary this year. We're a small regional college with very good personal care to our students, and internationalizing our student population is an important strategy for the college now. How much local Canadian students are studying there? Roughly about 2,500 full-time students. And how much percentage for international students there? About 400 international students, and about 250 of those are from India, maybe 200 of those, and about 100 or so from Punjab. Yeah, that's good. So maximum number is from Punjab. Yeah. That's good for us. So ज़्यादा बच्चे पंजाब चो भी ने, 2,500 बच्चा जेड़ा इंटरनेशनल कैनेडियन भी उत्थे पढ़दा, होर इंटरनेशनल 250 बच्चे ने, जिस 100 या 150 जेडे नंबर्स ने वो साडे पंजाबियां दे। पंजाबी हमेशा ही कैनेडा जाना जरूर चाहते हैं, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, पर हमेशा साकार नहीं कर पाते। किते हर एक का सुपना साकार नहीं हो पाता। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸੈਲਕ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, किस तरह देखते हो एक ऑप्शन सैलक्रिक कॉलेज दी स्टूडेंट्स पंजाबियों लिए? देखिए, सैलक्रिक कॉलेज जैसे कि पता है, आपको भी पता है, ये एसपीपी के अंदर ये कॉलेज है और एक ओल्डेस्ट कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और ब्रिटिश कोलंबिया में कैसलगर और नेल्सन इसके 2 कैंपसेज हैं। कोर्सेज जो इनके पास हैं बहुत अच्छे हैं, जिसमें डिप्लोमा और पीजी प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें नर्सिंग के लिए भी है। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपका क्या नाम है, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 3 इनटेक है, मई, जैन और सितंबर। जैन गया, मई के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, इसके बाद सितंबर के लिए भी साथ साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर बात करें इस कॉलेज की, इस कॉलेज से हम इतने सेटिस्फाई हैं कि कल हमारी एक पार्टी थी जिसमें सैलक्रिक कॉलेज ने हमें ये मतलब अवार्ड दिया है, जिसमें दिखाना पड़ेगा अपने दर्शकों को, स्टूडेंट्स को कि यस वी आर डूइंग वेरी वेल। दैट्स द रीजन कॉलेज ने हम पे फेथ किया है और ये हमारे साथ हैं। और जो स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट सारे के सारे सेटिस्फाई हैं। मैं मतलब पिछले 2009 से ही मैं कॉलेज को मोस्टली प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो अपने PSW की तरफ हैं, कुछ कंटिन्यूसली पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कॉलेज बहुत बढ़िया है, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर देखिए बात करें, एक बच्चा मेन सिटी में लाइक मान लो वैनकूवर जाता है या इधर टोरंटो जाता है तो उसकी फीस निकलती है 14 से 15,000 डॉलर, और इस कॉलेज की फीस है तकरीबन 9,000 या 9,300 डॉलर्स के आसपास। तो कल मिस्टर डैनी ने एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स दिया था, कल इनका है सेमिनार्स भी था मेरे ऑफिस में, कि भाई एक बच्चा जब बाहर जाता है, मान लो कनाडा में जब जा रहा है, तो मान लो वो वैनकूवर गया या फिर वो क्या नाम है टोरंटो गया, तो जो फीस निकल के आती है वो 14 से 15,000 डॉलर निकल के आती है। तो अप्रोक्स तकरीबन देखा जाए अगर इनकी फीस है वो 9,000 या 9300 डॉलर है, 5 से 6,000 डॉलर का फर्क आता है। और अगर देखा जाए जो स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी वर्क करता है वहाँ पे 20 घंटे पर वीक काम करता है, तो पर वीक वो तकरीबन 500-600 डॉलर ही कमा पाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 400 डॉलर के आसपास वो कमाता है, तो तकरीबन 4 से 5,000 डॉलर ही कमा पाता है पूरे साल के अंदर। और इतना डिफरेंस यहाँ पे है कि अगर बच्चा काम भी ना करे तब भी वो इक्वल है। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, वर्क राइट्स हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पे जॉब्स अच्छी मिल जाती है। जी, Danny, what Pradeep was talking there, he's saying that you gave an example yesterday that this area is better. How you differentiate that? That's a very good thing. What type of programs are there
in your college? So the most popular programs for international students from India would be business, hospitality management, the gerontological nursing program, human services. We have Indian ladies taking our early childhood education or social service worker programs. Okay. We also have environmental planning, digital media, which is a web design type program. Those are some very popular I think that's ones. all program for all the stream students which are coming from arts, commerce, non-medical, medical, all the options we have. Yes. ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਡ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ जी ਸੈਲਟ ਕ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ स्टूडेंट्स ਲਈ बेटर ऑप्शंस लेके आਉਂਦਾ है? देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनकी बड़ी समस्या होती है। अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करें, हर एक कॉलेज मतलब डिप्लोमाज या बैचलर्स प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक बच्चा जो ग्रेजुएट हो गया उसके पास मतलब उसके पास जो आगे के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इस कॉलेज के पास 4 स्ट्रीम के कोर्सेज हैं। जिस बच्चों ने नर्सिंग कर रखी है या जीएनएम डिप्लोमा है, प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्लस यहाँ रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो उनके पास पीजी डिप्लोमा है, दैट इज पीजी डिप्लोमा इन जेरिटोनोलॉजी नर्सिंग में है। मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड नॉलेज, 6.5 बैंड। अगर कोई बच्चा 50% मार्क्स चाहिए और 6.5 बैंड नॉलेज देन Minimum 50%। मिनिमम, ठीक है। अगर बात करें दूसरी स्ट्रीम की तो इनके पास पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग है, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस है। इसकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड, अगर किसी में 5.5 बैंड भी तो भी चलेगा। अगर बच्चे के पास 6 बैंड भी है, 6 बैंड भी है, वो बच्चा भी जा सकता है, बट एक अपग्रेडेड कोर्स होगा दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश, उस कोर्स के साथ बच्चा एडमिशन ले सकता है। मीन्स 4 कोर्सेज पीजी डिप्लोमा दिस कॉलेज इज रनिंग। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट की बात करें, दे हैव इन बिजनेस, सोशल सर्विस वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसके अलावा रिसोर्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसके अलावा फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा इनका फिश एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है और म्यूजिक से रिलेटेड कोर्स है। मतलब सारी वेराइटीज के कोर्सेज है। एक बच्चा आर्ट्स वाला है वो भी जा सकता है, एक बच्चा मेडिकल वाला है वो भी जा सकता है, एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है वो भी जा सकता है। Dr. Neil Kaban, sir, I want to ask you one question. You are vice president education there. Yes. What type of students, what type of profile you loves to give admission in your college? Oh, we have a lot. The students who are very keen, very interested, students who are mostly interested in practical studies rather than purely academic studies. So all of our programs have an academic component, but they all apply it to the business setting or the science or medical or real life. So we try to give students as much real life experience in their studies as they can, and students who are interested in those practical applications do well. That's very good because the skilled always pays to the student later. Right. How much students are there who are doing a skilled job there from the Punjabi students number, if we are saying? How much student you have doing a skilled work job there? Doing within their program? Yeah, practical students. Yeah. I would say probably all of them are doing some practical experience within their program because it's something we try and build into every program experience. ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੋਰਸ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਆ। जी ਬਿਲਕੁਲ जी ਲੱਭਦੇ। जी लगते हैं श्योर। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਜੋ ਕਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂटेज देखते हो एक स्टूडेंट लिए उस चीज़? देखिए, अगर इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें, हमारी एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल में ध्यान दिया जाता है, आज भी वही बाबर और अकबर पढ़ाया जाता है। क्या देखा जाए तो मतलब सब कुछ थ्योरेटिकल है। यहाँ पर अगर ये पेन भी बनाना है तो वो भी थ्योरेटिकल है कि भाई इसको कैसे बनाना है। लेकिन अगर अब्रॉड की बात करें, खासकर कनाडा की बात करें, वैसे तो सारे कंट्रीज में जितने भी वेस्टर्न कल्चर्स के कंट्रीज हैं उन सब में प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए वो हमसे एडवांस ज़्यादा है। मोर देन 100 टाइम दे आर एडवांस। रीजन बिहाइंड दिस, दे आर प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल एजुकेशन। इस पेन को बनाना है ना तो प्रैक्टिकल ही बनाना है, तोड़ के बनाना है, कैसे बनाना है। मतलब एक बच्चे को रिसर्च बेस्ड एजुकेशन मिलती है, बच्चे को मार्केट में जाकर रिसर्च करना होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, थीसिस दिए जाते हैं, उस पर वर्क करके ही बच्चा कामयाब होता है। कहने का मतलब यह है, पढ़ने के साथ साथ निकलना जरूरी होता है। एक अपनी लैंग्वेज में बोला जाता है कि कड़ा हुआ बंदा ज्यादा कामयाब होता है, तो ये कड़े हुए चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बच्चा प्रैक्टिकल होगा डेफिनेटली वो मोर देन 100 टाइम ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ को सक्सेस कर पाए। ਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ रहेगा? देखिए, अगर पर्टिकुलर टोरंटो के बारे में बात करें या वैनकूवर के बारे में बात करें, बच्चा जब जाता है ना तो समस्या आती है, कंपटीशन बहुत हाई होता है।
ऑलरेडी डेवलप्ड लाइक सिटीज में स्टूडेंट्स कॉलेजेस ज्यादा हैं तो बच्चे भी ज्यादा गए हैं, बच्चे ज्यादा गए हैं तो एक $10 पे काम कर रहा है तो मेरे जैसा जाके बोल रहा है नहीं दिन में $5 पे भी काम कर लूंगा। तो कंपटीशन ऐसा होता है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहला तो ये है कि भाई बच्चे ज्यादा हैं तो जॉब्स कम हो जाती हैं। अगर बात करें हम इसकी, ये नेल्सन में है और अपना क्या नाम है कैसलगर्ग में है, ये रीजनल्स में आ जाता है, आउटर्स में आ जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर कम है, ठीक है, उसके पीछे रीजंस ये है कि हर चीज सस्ती है, चाहे वो एजुकेशन सस्ती है, वहाँ पे अकोमोडेशन सस्ता है, खाना पीना सस्ता है, बच्चे कम है तो जॉब्स ज्यादा है। तो यहाँ पे 90% प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब हर स्टूडेंट्स को की कोशिश होती है कि उसको जॉब्स मिल ही जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ जाओगे तो एक रेस का एक होता है ना कंपटीशन, उस कंपटीशन से थोड़ा सा कंपटीशन होता है कि एक तो आपको दिल्ली या बॉम्बे जाके, एक आपको जाके थोड़ा सा बाहर जाके जॉब्स मिलते हैं। बाहर जॉब्स हैं, यहाँ जॉब्स है। दैट्स द रीजन कि ये यहाँ जितने भी बच्चे मैंने भेजे हैं आज तक एक भी बच्चे की कंप्लेंट्स नहीं आई है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है 20 आवर्स में या मुझे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स और टीचर्स रेशियो 15 स्टूडेंट्स 1 टीचर 1 टीचर, तो मतलब रेशियो अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, बच्चों पे इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। एक फैकल्टी हर एक स्टूडेंट्स का नाम जानती है कि भाई पर्टिकुलर जो पीछे वाली बेंच पे बैठा है कौन सा स्टूडेंट्स बैठा है। तो कहने का मतलब है जो क्वालिटी मिलती है, सारी चीजें हैं, लेस फी स्ट्रक्चर है, तो अपॉर्चुनिटीज हाई है और बच्चे सेटल हैं आज के। Sorry, Dr. Neil, I want to ask you one question, that what type of job outcomes are there in your areas where your campus are there? So which programs is on demand? Well, for all our career programs, the graduation job results are very high. So in our career programs, 90-95% of students have jobs when they... In all the programs you are... in all of our career programs. Same question to you, Danny. What you want to say? I'd like to say a couple of things. First, I'd like to emphasize that Western Overseas is a very strong partner of Selkirk College. We And presented yesterday them you with an gave an award. award to We the gave them country, an award yesterday because for outstanding student recruitment to Selkirk College. So Western Overseas really understands the programs at Selkirk College. Yeah. The other thing I wanted to say about jobs, I wanted to give 2 examples. So one of our Indian students recently graduated, and he received 3 job offers locally in the hospitality industry at the same time. And he chose the best one. Three job offers on the same time. Yes. मतलब एक बच्चे को 3 अपॉर्चुनिटीज, 3 जॉब्स, 3 proposals ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਰ yeah, ਸਕਦਾ definitely. ਹਸਪੀਟਲ with hospitality. Yes, in the area of hospitality. He's a front desk office manager in a chain hotel in our region now. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਆਊਟਕਮਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 3 जॉब्स निकलਦੀਆਂ। डेफिनेटली देखिए जो बच्चा, देखिए कहने की बात ये है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, कुछ करना चाहता है, तो रियली जॉब्स उसके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ गया तो रिज्यूम नहीं डाल रहा है, ठीक है, आगे जॉब सर्च नहीं कर रहा, उसके लिए कुछ ना तो कॉलेज हेल्प कर सकता है ना उसको खुद कुछ हो सकता है। कॉलेज को भी सीरियस जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। खाना खाने के लिए भी पहले बाइट्स को तोड़ना होता है, यहाँ तक लेके आनी होती है, तब खाना खाया जाता है। तो मीन्स स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद अपना PSW अप्लाई करेगा, रिसर्च करेगा, जॉब्स उसके पास है। Dr. Neil, you are saying that this college is from last 50 years and Yes. you are celebrating 50th anniversary this year. Yes. First of all, congratulations for that. Thank you. But from your having education service from last 50 years you're giving there, what type of feedback from the students are there? They are settled there already, or they are only surviving in a student's way there? No, they're quite settled. So every year we participate in a government survey of graduates, and our scores on those are quite good. We get good satisfaction rates, and besides the career programs where we have a good employment rate, we have academic programs where people go on to study for bachelor's degrees or master's degrees, and they are successful at major universities across Canada. So that's going back to your quality question. The quality of education we offer is quite good, and students can go on and be successful anywhere. And same question to you, Danny. What you want to say? That's also the same question. Okay. So I think that I'll just summarize again the unique selling points of Selkirk College. I know there's a lot of colleges to choose from, but the programs that are popular for a reason. I'll just mention again the hospitality program. One of the few programs that offers a paid, guaranteed work term for every student that participates in our hospitality program. Oh, that's good. Yeah. And if we want to ask you from which area means that from the which province is there, people loves to live there or want to study there and live, want to live in another region also?
The students come with the idea that after they graduate, they'll leave and go to a big city. But many of the students, after 2 years, they fall in love with our region and they want to stay. Are you satisfied with this? Oh, yes, yes. I moved there 20 years ago because it's a beautiful place to live. What's the reason behind that? Well, you love that place already? Yeah, I went there to visit and fell in love and 3 months later moved there. Oh, that's good. देखिए, इसके पीछे एक रीजंस होता है, जैसे कहते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन किया मिस्टर डैनी से और मिस्टर नील से कि भाई बच्चे आते हैं फिर इस मूड में कि भाई बाद में वो कहीं बस सिर्फ पढ़ने ही आते हैं, वहीं रह जाते हैं या चले जाएंगे आगे? देखिए, जहाँ 2 या 3 साल एक बच्चा इन्वेस्ट कर लेता है अपना, उसकी ना लोकल सोसाइटी, उसकी ट्यूनिंग्स विद द कॉलेज, विद द प्रोफेसर, विद सोशल रिलेशंस, सोशल लाइफ और एम्प्लॉयर्स के साथ, वो सारी की सारी उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं है वो किसी बिग सिटी से ज्यादा वहां कमा रहा है, तो और कंपटीशन के बगैर, तो जो बच्चा जाता है डेफिनेटली वो वहां पे रहता भी है। So, Dr. Neil Kavan, many of students are watching this show and watching you also. They want to hear you what type of students, what type of academics you want, because very much students are giving exam in this time. How much academic percentage you want for your college? So the rate set by the High Commissioner 50%, so that's what we need for the nursing program at 60%. 60%. Right. ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪਰਸੂਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਈਂਡ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? आइल्स के लिए मीन एकेडमी कर ले मींस सर आइलैट्स ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ, मतलब जो 12th कर रहे हैं। हाँ, जो 12th कर रहे देखिए हैं। पहले 12th पे ध्यान दीजिए प्लीज। और कहते हैं आइलैट्स से 6 बैंड आ जाना अकेडमी। आइल्स तो हर महीने 4 बार मिलेगी आपको, लेकिन पेपर एक ही बार आएंगे मार्च में, फिर नहीं तो नेक्स्ट 2017 पे जाना पड़ेगा। हार्डवर्क करो, 60%, 70%, 80%, 90%, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हो प्लीज लेके आइए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसमें आपने 6 मारना ही मारना है। अगर आपने कनाडा जाना है तो ट्राई टू गेट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर, क्योंकि वीजा ऑफिसर यही देखता है जब उसके सामने फाइलें होती है, एक 50% वाला बच्चा, एक 70 और 80% वाला बच्चा है, तो वेटेज किसको दिया जाए? वेटेज 80% और 70 वाले को दिया जाएगा, 50 वाले को नहीं दिया जाएगा। So, पहले बिल्कुल सही गल है, ट्राई टू गेट 60 और 70% मार्क्स, और जस्ट उसके बाद जिस दिन आपके पेपर खत्म हो जाते हैं, आइए वेस्ट नॉर्थ के पास। मैं अगेन कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को आइलेट्स का भी अवार्ड है, मैं बेस्ट रीजन अवार्ड विनर हूँ आईडीपी से, ठीक है जी। ये ऐसे नहीं बनते, पर एक चीज आइलेट्स करनी होती है। आइलेट्स अवार्डेड होने ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੂਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ, ਐਕੈਡਮਿਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ। तो काफी मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर अलाउ है टाइम, अगर जी प्लीज। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर कनाडा जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, यूएसए जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, जनरली मैंने जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स देखी हैं, एक बच्चा एक साल आइल्स करने को लगा देता है। पहले वो स्पोकन में जाता है, थोड़ी बहुत वीक है तो, या ग्रामर करता है, स्पोकन करता है, फिर आइल्स में जाता है, और उसकी तरह से वो 1 साल 2 साल लगा ही देता है। ऐसे डेली मुझे कई स्टूडेंट्स मिलते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे पेपर खत्म होते हैं टाइम वेस्ट मत करिए, उसी टाइम आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए अगर आपने अब्रॉड जाना है, क्योंकि इनटेक बहुत कम होते हैं, 3 ही इनटेक होते हैं, एक इनटेक निकला तो दूसरा इनटेक फिर मई है, मई के बाद सितंबर आता है, और आइल्स में भी आज की डेट में 3-3, 4-4 महीने की डेट मिल रही है। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, छुट्टी खत्म हो, जैसे पेपर खत्म होते हैं मामा नाना के घर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो ताकि स्कोर लेके आओ। सेकंडली अगर डाउट है, एक साथ 2 या 3 अपनी डेट बुक करो, 10,000 के कोई बड़ी बात नहीं है। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 8 ਲਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਬੈਸਟ ਔਰ ਨਾ ਬੈਸਟ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਂ रहा। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡਡ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ गाइड करना साडा फर्ज बन जाता है। किवें सिलेक्ट करेगा एक चंगा? एक अच्छा चीज पहले बता डेमो लो जी, पहली बात तो डेमो लो, और डेमो में आपको सेटिस्फेक्शन होती है तभी उसको ज्वाइन करो। इसके बाद स्टूडेंट्स की फीडबैक लो सर, स्टूडेंट्स की फीडबैक। कई बार डेमो बड़ा बढ़िया तरह देता जाता बट बाद दे विच वो चीज़ां नहीं मिलती। सर एक बात बताओ ना, एक बच्चा 10 बच्चों को बताता है, अगर पॉजिटिव है, एक बच्चा
100 बच्चों को बताता है, अगर नेगेटिव होता है तो सर ये स्टूडेंट ही भगवान है हमारे, सीधी सी बात है। अगर ये सेटिस्फाई होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि कोई फिक्स सैलरी आनी सर्विस आनी इंडस्ट्री है, है, बिल्कुल। सर्विस इंडस्ट्री है, एक बच्चा बट ऑप्शंस बहुत है ना, नंबर तो निकल देने तो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं भी जा सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये कहूंगा कि डेमो लीजिए और उसके पुराने जो फेसबुक पे जाइए, देखिए कि स्टूडेंट्स का क्या मतलब रिव्यू दिया है, उस पे डालिए, अपने क्या गूगल पे डालिए, वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना है नेगेटिव पॉइंट डालिए। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲਕਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। Hi, my name is Tammy and I'm one of the instructors in the gerontology program for our international students. It's a 2-year program and it's been a pleasure to get to know the students from India. They are a wonderful group, and as much as I know they have learned a lot being here in Canada about our healthcare system and caring for the older adults, as an instructor I've learned probably more from them than they have learned from me. It's been an amazing experience of sharing a wealth of knowledge back and forth and just welcoming them to our country. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੈਰੋਂਟੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਾਲਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਸਰਕਲ ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਆਫ ਅ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਫॉर ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं आनी, बस बी रेडी एंड वेलकम टू सर्कल कॉलेज। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे सर्कल कॉलेज में जो कि कैसलगार्ड में है और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। और ये बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है। स्टार्टिंग में मतलब हम सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे आएँ, कैसे मैनेज होगा, कॉलेज कैसा होगा, इंस्ट्रक्टर्स कैसे होंगे और इन्वायरमेंट कैसा होगा, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ के सर्कल कॉलेज के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत दूर हैं, इंडिया में बैठे हैं, या फिर हमने मतलब मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फैमिली नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और जैसे हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं तो एक बहुत अच्छा एक वो सपोर्ट होता है। और मैं हूँ जेरोंटोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। स्टार्टिंग में जब मुझे ये बताया था मेरे कंसल्टेंट ने कि ये एक कोर्स है जो कि नया कोर्स है और अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे थोड़े से डाउट्स थे कि आगे जाके मतलब कैसे मैं मैनेज करूँगी और कैसे सब कुछ कर पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आगे जब इंस्ट्रक्टर्स मिले, फैमिली मिली एक बहुत अच्छी जो कि
मेरे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत अच्छा एक सपोर्ट था वो, और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। और फिर इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्नो होगी, कैसे मैनेज करेंगे ये वो सब चीज़ें, लेकिन वो सिर्फ जब हम इंडिया में होते हैं तो वो सब चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है। यहाँ आने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, होप टू सी यू हियर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम एरिका परेरा है। मैं कनाडा में 2 साल से हूँ। फ़िलहाल मैं सल क्रीक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन जेरोंटोलॉजी नर्सिंग पढ़ रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल कैरियर का काम कर रही हूँ। ये कॉलेज और ये कोर्स 1 साल बाद, कोर्स के 1 साल बाद ही कैरियर के लिए प्रिपेयर करता है, और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन्होंने भी नर्सिंग किया है और जिनको अगर नर्सिंग करना है तो मैं ज़रूर सबको रेकमेंड करूँगी कि कनाडा ये सल क्रीक कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ कम, वी आर हियर टू वेलकम यू। थैंक यू। सल क्रीक कॉलेज बहुत वधिया, सो इत्थे सानू बहुत ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटी मिली है भी एक नर्सिंग स्टूडेंट होम ते। सो मैं हुण एक नर्सिंग होम दे विच काम करदी हां, सो मैनूं बहुत ज़्यादा वधिया लग्या। सत श्री अकाल, मैं मीनू पंजाब लुधियाना तो मैनू इत्थे आए हुए 2 साल हो गए तो इत्थे सब कुछ बहुत वधिया, तुहानूं आके इत्थे बहुत चंगा लगेगा। मैं जेरोंटोलॉजी पीजी डिप्लोमा कर रही हाँ आफ्टर नर्सिंग, एंड इत्थे तुहानूं सारिਆਂ ਦੀ सपोर्ट मिलूंगी, एंड यू विल लाइक एवरीथिंग हियर। नेचर ब्यूटी इज़ द मेन अट्रैक्शन। एंड सत श्री अकाल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ACG ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੈਲਰਿਕ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲ ਕਬੌਨ, ਡੈਨੀ ਬੀਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।